بلکہ 100 جانے قربان ہے. میرے بھائیوں، ہم بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ شاسن اور پرشاسن کو بتانا چاہتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، اسے ہلکے میں نہ لیا جائے. ہماری خاموشیوں، ہماری امن پسندیوں کو ہماری بزدلی نہ سمجھا جائے. ہم اس ملک کے سنویدھان کے پابند ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہے اور رہیں گے، لیکن سنویدھانک طور پر ہم ایسے تتووں کو لگام لگانا بھی جانتے ہیں اور ان پر قانونی کارروائی چاہتے ہیں تاکہ ہماری محبت کو، ہماری عقیدت کو، ہمارے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی ہے اس کی کچھ بھرپائی ہو سکے اور ہم دنیا کو بتا سکے کہ اسلام ہندوستان میں غیر محفوظ نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ ہم اپنے ملک میں پوری طرح سے محفوظ ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، یہ طرح طرح کے جو آج لوگ ہمتیں کر کے اٹھ رہے ہیں، کبھی قرآن کی عظمت پر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اپنے ناپاک کیڑا ہونے کا ثبوت دیتا ہے. میرے بھائیوں، یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے ہندوستانی سنویدھان کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس سنویدھان نے ہمیں سکھایا ہے کہ ظالموں کو کیسے کافر کردار تک پہنچایا جاتا ہے، ظالموں کو سزا کیسے دلوائی جاتی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ظالموں کا سر کچلنا ضرور پڑے گا اور ان کا سر کچلنے والے ضرور پیدا ہو. گستاخ نبی کی ایک سزا. میرے بھائیوں، یہ ہمارے اسلام نے ہمیں سکھایا ہے. ہماری رگ رگ میں جس طرح سے ہماری نسوں میں خون دوڑتا ہے، ہمارے خون کے ساتھ میں ہمارے نبی کی محبت ہماری رگوں میں دوڑتی ہے. یہ دنیا جانتی نہیں ہے ابھی. ہماری بدعملیوں کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، ہمارے نمازوں سے دور رہنے کی وجہ سے کوئی دھوکے میں نہ آ جائے، ہمارے اسلام سے اور اسلامی احکام سے عملی طور پر دور ہونے کی وجہ سے بظاہر کوئی دھوکہ مت کھائے. یاد رکھے ہم بھلے ہی برے سہی، لیکن اپنے نبی کے نام پہ کل بھی مر مٹنے کا جذبہ تھا، آج بھی مر مٹنے کا جذبہ ہے اور انشاءاللہ باقی رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا. دیکھو یہ گستاخ نبی کی ایک سزا. گستاخ نبی کی ایک سزا. میرے بھائیوں، ہم بتانا چاہتے ہیں اور آپ سب سے بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ سب دنیا کو دکھا دو کہ ہم اپنے نبی کے نام پر کل بھی آج عالم ایجاز سے پیارا محمد ہے، متاع عالم ایجاز سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت.
चाहते हैं। हमारे सरपरस्त, हमारे सरबराह, हमारे रहबर हुजूर बैनुल इरफान मुफ्ती आफाक अहमद ने हमें यही दर्स पढ़ाया है कि जिएंगे नाम ले तुम्हारे दुश्मनों के नाम हस्ती से गुस्ताखे नबी की एक सजा, विधायक जी आगे, विधायक जी गुस्ताखे नबी की एक सजा। ले रहे देखो ये है मेरे नबी की शान। मेरे भाइयों, कुर्सी लिया भैया। हमने कभी भी सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन तारीख गवाह है इस बात पर कभी हमने हमारे नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं की है। वो धोखे में न आए जो सस्ती शोहरत की वजह से अपने आप को चमकाने के लिए कुर्सियों के लालच में, दुनिया की थोड़ी सी दौलत के लालच में अपने आप को मनवाने के लिए ऐसी गुस्ताखियां करके जो सस्ती पब्लिसिटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धोखे में है। उन्हें याद रखना चाहिए हमारा नबी सबसे ज्यादा प्यारा है। हमें अपनी जान प्यारी नहीं है, हमें अपनी औलाद प्यारी नहीं है, हमें अपने मालो मता प्यारे नहीं है जितना हमें मदीने वाले आका से प्यार है, अपने नबी से प्यार है। मुस्तफा के नाम पर हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और एक बात और एक बात और सुन ले, एक बात और याद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बात पर खुशी भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें तरह तरह की खबरें मिल रही हैं। हमारे इस भारत की ये सबसे बड़ी संस्कृति की अच्छाई की दलील है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी के नहीं बल्कि अदर कम्युनिटीज के भी हमारे इंसाफ पसंद भाई आज खड़े हो गए हैं और निरे स्वामी हजरात, निरे पंडित हजरात इस बात पर बड़ी तेजी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ में वो डटे हुए हैं कि ऐसे नरसिंहानंद जैसे बदतमीजों को जेल के पीछे किया जाए और उन्हें फांसी के तख्ते पर लटका के दुनिया को यह दिखा दिया जाए कि हिंदुस्तान में किसी भी धर्म गुरु की तौहीन न कल बर्दाश्त की गई थी, न आज बर्दाश्त की जाएगी और न कभी बर्दाश्त की जा सकती। आज पूरी दुनिया का मुसलमान एक है इस बात पर, कोई धोखे में ना आए। आज ये थोड़े से मुसलमान जो थोड़े नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बताया नहीं, एक आवाज भी सही से नहीं लगाई गई, तब ये दीवाने जमा हो गए हैं। अगर कायदे से जिला काजी हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब जो यहाँ हजरत बैनुल इरफान के शहजादे तशरीफ फरमा है, अगर कायदे से एक ऐलान कर दिया जाता तो आज कन्नौज की सड़कों पर आशिकों के सिर्फ सर ही नजर हमें अपनी बात को न्याय जिम्मेदारी के साथ में और मौजूदा हालात का लिहाज रखते हुए कानून के सामने, संविधान मानने वालों और शासन और प्रशासन के सामने रखना है। और हम बताना चाहते हैं उन सेकुलर मिजाज पार्टियों को भी जो सेकुलर होने का दावा करते हैं, आज हमारे सामने हमारे साथ में जो नहीं खड़ा है, मेरे भाइयों उन्हें आने वाले वक्त में बता देना कि तुम सब कुछ हो सकते हो लेकिन मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नबी की एक सजा, नबी की एक सजा, जब तक सूरज चांद रहेगा मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। हम जानते हैं आज भी शासन और प्रशासन में बहुत कसीर तादाद में ऐसे लोग हैं जो अमन और शांति चाहते हैं, जो मुल्क की तरक्की चाहते हैं, जो मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
اور جو چاہتے ہیں کہ یہاں نفرتوں کے بیچ بوکے اور ظلم و ستم کو پروان چڑھا کے کبھی بھی دیش کا بھلا نہیں کیا جا سکتا ہے. ایک گھر جب نفرتوں کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے تو اتنا بڑا ہمارا اکھنڈ بھارت نفرتوں کے بلبوتے پہ نہیں چلے گا. وہ سب چاہتے ہیں, میں ایسے انصاف والوں کو آواز دیتا ہوں, کسی کے ڈنڈے کے خوف سے نہیں, کسی کے ظلم کے ڈر سے نہیں, انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو دنیا سے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے پیشوا ہے, پوری دنیا کے لیے لائق ہے. آگے دے دیں. آگے دے دیں. یہ حضرت پکڑا دیے. تھوڑا کم لگ جائے. خاموشی کے ساتھ سن لیں. ہمیں صرف جذباتی نہیں بننا ہے, ہم صرف یہاں جذبات میں بہنے نہیں آئے ہیں, بلکہ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے بدتمیزوں کو جتنی جلد ہو سکے سلاخوں کے پیچھے کر کے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی جائے, ہمیں خاموش کرنے کی کوشش کی جائے. ورنہ آج جو آواز یہاں بلند ہو رہی ہے یہ صرف یہاں ختم نہیں ہوگی, مرتے دم تک ہم اپنے نبی کی عظمت پر پہرا دیتے رہیں گے. ہمیشہ اپنے نبی کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اور وہ لوگ سن لیں, میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا, سیکولر پارٹیوں کے آج نیتا جو ہمارے ووٹوں کی بنیاد پر آج ایئر کنڈیشن روموں میں رہ رہے ہیں, ایئر کنڈیشن بنگلوں میں رہ رہے ہیں, آج جو چارٹر پلین سے چلا کرتے ہیں, یہ ہم غریبوں کے ووٹوں کی دین ہے, ہم مسلمانوں کی محبت کی دین ہے. لیکن وہ یاد رکھے ہم مسلمان سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے نبی کے معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا ہم اسے کبھی اپنا لیڈر نہیں بنا سکتے. میرے بھائیوں, اس لیے آپ سب ہمیشہ اس بات پر تیار رہیں, اپنے ملک کے سنویدھان کے جیسے ہم پابند تھے ویسے اب بھی پابند ہیں اور آگے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کبھی قانون سے کھلواڑ نہیں کرتے ہیں, اگر ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوتے تو آج پتہ نہیں ہندوستان کا 10-15 دن میں کیا حال ہو چکا ہوتا. کیسی خون کی ہولی کھیلنے کی کوشش لوگ کر رہے ہیں, کیسی آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ آج بھی ہماری اس ملک سے وفاداری اور محبت کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے جان سے پیارے نبی کی شان اقدس میں ایسی گستاخیاں برداشت کر رہے ہیں اور پھر بھی اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے رہے ہیں. لیکن ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے اور دنیا کو یہ بتا دیا جائے, ظالموں کو سنا دیا جائے اور بتا دیا جائے رفیقوں ہو چکے مایوس ہم, دیوارے زنگلہ سے قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے. اور میری خاموشیوں سے تم کہیں دھوکہ نہ کھا جانا, محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے. تیرا میرا رشتہ کیا یہ لڑائی ہماری سنویدھانک لڑائی ہے, یہ جب تک جاری رہے گی جب تک ظلم کا سر نہیں جھک جاتا ہے, جب تک جاری رہے گی جب تک ایسے بدتمیزوں کو, ملک دشمن عناصر کو NSA وغیرہ لگا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہمیشہ کے لیے نہیں کیا جائے گا, اور انہیں تختہ دار پر جب تک جھولتا ہم نہیں دیکھیں گے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک نہیں پڑ سکتی ہے, ہمیں چین و قرار نہیں مل سکتا ہے. اس لیے کہ ہمارا نبی ہی ہمارا چین ہے, ہمارا نبی ہی ہمارا قرار ہے, ہمارا نبی ہی ہمارا سب کچھ. حق ہے بے شک. زندہ باد زندہ باد.
विधायक जी 2 शब्द बोल दो, 2 शब्द बोल लेंगे। बैठ जाओ तुम लोग, बैठ जाओ, जो लोग खड़े हैं बैठ जाओ भैया। नरसिंहानंद हमारे बड़े भाई चेयरमैन, ग्रुप चेयरमैन हाजी रईस साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सलीम खान साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई मुन्ना दरोगा जी, सदर विधायक अनिल भोरे जी, समाजवादी पार्टी कोषाध्यक्ष जयस खान साहब, नगर अध्यक्ष भोले साहब, भोले कुलथी जी, मेंबर साहब, तमाम हजरात, आज बड़ी वास्तव में बड़ी विकट समस्या है। देश के सामने एक विकट स्थिति पैदा हो गई है। इसको जरा ऊपर करो, बैनर ऊपर लड़के पीछे हो जाओ, लड़के पीछे हो जाओ। आते हाँ, धर्म के ऊपर कटार छोटे सीधे किए जा रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। हमारा देश अरे नहीं पीछे रखो, बैनर पीछे रखो। धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सभी धर्मों का समान आदर है, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे धर्म बौद्ध हो, सभी को रहने का अधिकार है। और जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो सभी ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अगर हिंदू लड़ा तो मुस्लिमों की भी कुर्बानी कम नहीं रही। अब मुसलमान अगर लड़े हैं तो सिख और ईसाइयों की भी कुर्बानी कम नहीं रही। इस देश में सभी का बराबर रहने का भी हक है और सभी को पूरी आजादी रहने का हक है। किसी भी धर्म के, किसी के व्यक्ति के पैगंबर के ऊपर किसी को कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है और किसी को अपमानित करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपमानित करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आज इस देश का माहौल बड़ा खराब है, प्रदेश का भी माहौल बड़ा खराब है, जो केवल धर्म के नाम से ही सरकारें बनने लगी हैं। आप जानते हैं ये बयान भी उसी की सोची समझी रणनीति से आज दिया गया है। अभी तक जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही तब तक कभी कोई पीर पैगंबर के खिलाफ बोला और न हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोला। अब सपा सरकार में सुनो सही है राजनीति कोई भी वो नहीं होगा यहाँ पर, ताल्लुक सियासत तो कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार बनती रहे, इसीलिए कोई संत आता है, कोई महात्मा आता है, कोई शंकराचार्य बोल जाते हैं, कोई और बोल जाता है। किसी को कोई हक नहीं देता है, संविधान हक नहीं देता है। संविधान की व्यवस्था सभी को समान अधिकार है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे धर्म बौद्ध हो। आज अगर हिंदू किसी देवी देवता के खिलाफ कोई अल्पसंख्यक भाई बोलता तो देश विवाद आता है। वंश के खिलाफ बोलता है, भगवान बुद्ध के खिलाफ बोलता है तो बौद्ध धर्म के लोगों का अपमान होता है, वो भी अपनी बात को आवाज बुलंद करते हैं। उसी तरीके से हम सबको अपने अल्पसंख्यक भाइयों का, अपने मुस्लिम भाइयों का, इस्लाम का भी सम्मान करना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ अगर बोलता है, पीर पैगंबर के खिलाफ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। बहुत बड़ा इसी तरीके से भी इस देश में अमन चैन में खलल डालने की कोशिश कोई भी न करे, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, जो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। हम सब चाहते हैं अमन चैन रहे। इसलिए आज हमारे अब सबके भाइयों ने जो कार्यक्रम किया, वास्तव में इस सब में हमें सब लोगों को भागीदारी करना चाहिए। जो अमन चैन चाहते हैं उनको इसमें शिरकत करनी चाहिए, उनको आना चाहिए और विरोध करना चाहिए कि जितने भी विरोध हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला है, उनका अपमान किया है, इस्लाम धर्म का अपमान किया है, उसे किसी तरीके माफ करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। शब्दों के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा और क्योंकि मुझे अभी जाना है, जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा है, उनके पर्चे की जांच होनी है। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें और इसलिए जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई न हो हमारा ये कारोबार चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। बहुत अच्छा। नबी की
सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की, गुस्ताख नबी की एक सजा। सरतन से जुदा, सरतन जुदा, बहुत जल्दी से जुदा होना चाहिए। दो शब्द बैठे रहे बैठो भाई बैठो। तमाम सभी हजरत, जिस तरह से आज हमारे देश में कुछ लोगों द्वारा नबी के खिलाफ जो गलत बयानबाजी की गई है, उनकी सिर्फ और सिर्फ मंशा यही है कि देश में कैसे आपस में व्यवस्था कायम हो। जबकि सच्चाई है ये देश चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका बराबर का हिस्सेदारी है देश में रहने के लिए, देश में धर्म को मानने के लिए। हम तो कहते हैं तमाम आबादी हिंदुओं की वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ रहने वाले हिंदू मुस्लिम में कहीं किसी तरह का विवाद और बंटवारा हो। लेकिन जिस तरह से आज नबी के लिए जिसने ये गलत बयानबाजी की, हम विश्वास रखते हैं तमाम ऐसे हिंदू, तमाम ऐसे सिख, तमाम ऐसे ईसाई उसके विरोध में आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। जब संविधान ने सभी को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, धर्म मानने के लिए, पूजा करने के लिए बराबर स्वतंत्रता दी है, तो ये माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग, कुछ चंद लोग इस तरह से बयानबाजी करके देश को बांटने का प्रयास करते हैं। देश में भाईचारा कायम जो है उसको खत्म करने का काम करते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ऐसे लोगों को सख्त सजा दिलाने के लिए सामने सभी को आना चाहिए, जिससे विश्वास कायम हो सके देश के कानून के प्रति। देश में रहने वाले लोगों को ये विश्वास हो जाए कि पैगंबर के खिलाफ या अन्य देवी देवताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करोगे तो कानून के तहत उनको सख्त सजा दी जाए। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को देशद्रोही घोषित करें, उसको सही बात कही, होना यही चाहिए। करने के लिए जैसे लोगों को सख्त सजा दिलानी चाहिए। बिल्कुल फांसी होनी चाहिए। हम हिंदू धर्म के लोग विश्वास दिलाते हैं आपको, किसी भगवान रसूल या किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा, उनके दिलों को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, तो ऐसे लोगों को सख्त सजा दिलाने के लिए हम लोग सदैव आपके साथ खड़े हुए हैं। इधर आ जाइए। करिए थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, गर्मी धूप तो है ही है। नारे आप लोग तकरीर में कम लगाना, सुन लो गौर से, धूप है, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, जल्दी प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ ताकि बैठ जाए सब लोग बैठ जाए। जिधर वाले बैठ लेना। जल्दी जल्दी कर लीजिए। मैं पीछे आ गया। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, इतनी कसीर तादाद में हमारे तमाम ही बिरादरान वतन और बिरादरान इस्लाम हाजिर हुए हैं, और मकसद क्या है वो हमारे बैनर से भी जाहिर है और हमारी बातों से भी जाहिर है और हमारी यहाँ इत्तेहादी ताकत से भी जाहिर है। हिंदुस्तान दुनिया की 256 कंट्रियों में वो एक अकेली
कंट्री है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ाहिब के लोगों को एक साथ अपने मजहबी तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहने और जीने का हक दिया गया। और याद रखें, इस मजहबी तहफ़्फ़ुज़ के बीच में जो शख्स भी आपसी सहयोग को, आपसी इत्तेहाद को तोड़ता है, चाहे वो अपनी बातों के ज़रिए से, चाहे वो अपने अमल के ज़रिए से, अगर कोई शख्स ऐसा काम करता है तो बाकायदा तौर पर ये यहाँ के कानून में लिखा हुआ है कि वो देश का दुश्मन है, वो देशद्रोही है। और जो देशद्रोही होता है वो किसी मजहब का ना तो बाबा हो सकता है, ना वो किसी मजहब का महात्मा हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो देश का वफादार नहीं हो सकता। देश का वफादार वही है जो देश के कानून के मुताबिक चलता है। और डासना गाजियाबाद के एक इस शख्स ने, जो कि बज़ाहिर मजहबी लिबास पहनता है, इसने देश के कानून के खिलाफ बोला है, देश के निवासियों के खिलाफ बोला है, देश के मुसलमानों के खिलाफ बोला है, देश के मुसलमानों के प्रॉफिट के खिलाफ बोला है। और जो शख्स ऐसा काम करता है वो देश को तोड़ने का काम करता है, और हम हमेशा देश को जोड़ने का काम करते हैं। हमारी पिछली बैकग्राउंड भी पढ़ के देख लीजिए, हमारी कुर्बानियां इस बात पर गवाह है, हमारी ये मस्जिदें इस बात पर गवाह है, लाल किला इस बात पर गवाह है, ताजमहल इस बात पर गवाह है, हमारी APJ कलाम की दी हुई ताकत हिंदुस्तान की इस बात की गवाह है कि मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है, मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार है। और हम जब वफादारी अपने मुल्क से करते हैं तो अपने नबी से कितनी ज्यादा वफादारी हम दुनिया को बताना चाहते हैं। जब वफादारी में हम कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम अपने नबी की गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हज़रात मोहतरम, आपने मुझसे कबल कई बयान सुन लिए हैं। मैं तमाम ही इसमें शरीक होने वाले, इस एहतजाज में शरीक होने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुस्लिम समाज के भी और हिंदू समाज से भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग लेवल देख के बात करते हैं। अभी मुझसे कुछ लोगों ने और कुछ गुजारिशात भी करना शुरू कर दी हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये प्रोग्राम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये प्रोग्राम किसी तंजीम के बैनर तले नहीं है, ये प्रोग्राम एक सच्चे हिंदुस्तानियों का है, ये प्रोग्राम सच्चे मुसलमानों का है। इस प्रोग्राम में हम इस नियत से सब शरीक हुए हैं, किसी पार्टी के लेवल पर नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं हमें भी बोलने का मौका दिया जाए और हमें भी ये कहा जाए। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, मेरे भाइयों, इसको सियासत का मत बनाओ, बल्कि इसको इंसानियत का बनाओ, इसलिए कि ये इंसानियत के मोहसिन का प्रोग्राम है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ जमा हुए हैं। हम अपना मुतालबा हुकूमत से करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जितने भी हमारे भाई शरीक हुए हैं, विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब, ये इनके ओहदे हैं पार्टी के लेवल से, लेकिन उन्होंने ये बात खुद कही है कि ये उस दर्द के साथ आए जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंची है। जो हमारे इस दर्द का साथी है, हम उसके हमेशा के साथी हैं। हम पार्टियों को लेवल नहीं देखते, हम तो इंसानियत को देखते हैं। हमारे नबी ने हमको सिखाया। आज हमारे साथ ही आखिर ज़ियादतियां क्यों की जा रही हैं? आज हमें खामोश होने का हुक्म दिया जाता है, हम कितनी खामोशियां सहें? आप देखें, कोर्ट का फैसला आया, मस्जिद के मामले में हमसे कहा गया खामोश रहो, हम खामोश रहे। मां बुलंद लिंचिंग की गई, हमसे कहा गया तुम कुछ मत करो, हम करेंगे, हम खामोश रहे। हमारे भाइयों के साथ ज्यादतियां की गई, हम खामोश रहे। हमारे साथ पकड़ के लोगों को मारा गया इस्लामी शनाख्त की वजह से कि ये मुसलमान है, ये दाढ़ी वाला, ये टोपी वाला, ये मदरसे वाला, ये फला वाला। बीमारियों तक के नाम हमें दे दिए गए, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। लेकिन ये बात हम बताना चाहते हैं, हम सारे बिला किसी भी जो है फर्क के साथ ये बात बनामे मुस्लिम और बनामे इस्लाम यहाँ इस स्टेज से ये बात बताना चाहते हैं। हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, हम अपने माल दौलत कान गवारा कर सकते हैं, लेकिन ये बात हुकूमतें, ये बात ताकतें, जितनी भी शातिर ताकतें कान खोल करके सुन लें कि हम अपने नबी की नामूस की कभी भी बेइज्जत की गवारा नहीं करेंगे। इसके लिए हम हर कुर्बानी दे रहे हैं, इसके लिए एक एक बच्चा भी हमारा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हम कानून के दायरे में रहकर, अपने हाथ में कानून नहीं ले रहे हैं,
कानून की बात है, हमने हर काम लीगली तौर पर करने की कोशिश की है। अब लोग बहाने बनाते हैं कि साहब इतनी भीड़ जमा कर ली, कल से लेके ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि बहुत ज्यादा भीड़। मेरे भाइयों, अपनी बात कहने के लिए आखिर वो कौन सी जगह हमें बता दो कि वहां जाकर के वो बात कह दी जाएगी। हम 4 या 5 आदमी जाते कलेक्ट्रेट, इससे पहले वसीम रजवी के खिलाफ हम लोगों ने जाकर के अपना ज्ञापन दिया, जाकर के हमसे कहा गया है कार्रवाई की जाएगी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कन्नौज में कोई अभी उसके नाम से FIR दर्ज नहीं हुई, कोई उसके बारे में बताया नहीं गया। इससे पहले न जाने हमने कितनी चीजें ले जाकर के दी, कोई नहीं सुनवाई हुई। अब उस पर भी कहा जा रहा है कि गाइडलाइन का हमने पूरा ख्याल रखा। ये चाहने वाले आए, इनको सबको इस बात का एहसास है, आखिर अपनी बात रखने का हक है। लोग नेता अपनी सभा कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते? आपको अपना कहने का कोई इख्तियार नहीं है, और कहा जाता है कि आप कह लीजिए। ये भी कहा जा रहा है कह लीजिए, और ये भी कहा जा रहा है कि मत कहिए। ये दोगली पॉलिसी अच्छी चीज नहीं है। इंसान है, आखिर इंसानों जैसा सुलूक होना चाहिए। इसलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से ये बात हम लोगों को बता रहे हैं कि अभी तो हमने ये शुरुआती तौर पर ये आगाज, हमने ये बात कहने की कोशिश की है कि उस नरसिम्हानंद बाबा ने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस शख्स को फौरन गिरफ्तार करके सजा दी जाए। 2 तारीख को उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुस्ताखी की। मुसलमान आप सोचें कि कैसे हालात हो गए, कितना बैकअप दिया जा रहा है, कितना बैक सपोर्ट दिया जा रहा है। एक शख्स बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, पूरा मुल्क देखे, चैनल्स दिखाएं और देखें, और उसके बावजूद हुकूमत जो नजर रखती है, जरा सी चीज पर नजर रखती है, लेकिन उसके बावजूद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से एक आदमी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे कैसे जुमले बोल रहा है, एक मुसलमान तो कह भी नहीं सकता। लेकिन अगर मैं इस तरह से बता दूं, अगर उसी बाबा को हम कहें कि वो बाबा डकैत है, वो बाबा चोर है, बलात्कारी है, लुटेरा है, तो आपको कैसा लगेगा? किसी को कह दिया जाए, किसी आम आदमी को कह दिया जाए, कैसा लगेगा? इसके अलावा भी उसने ये जुमले वो बोल रहा हूं जो उसने कहे, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो मौजूद है। 2 तारीख 4वां महीना, उसकी आप इसी 2021 की वीडियो निकलवा के देख लें। उसने ये सारी बकवास उसके अंदर की है, और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वायलेंस कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, कोई नहीं वायलेंस कर रहा। आप आज ही हुकूमत की तरफ से ऐलान हो जाए कि उसको आज ही गिरफ्तार करके सुबह उसको सजा दी जाएगी। पूरे मुल्क से इंशाअल्लाह एक ही आवाज होगी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हुकूमत जिंदाबाद का नारा हम लगाएंगे। अब हुकूमत की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। और कोई भी मसला होता है उसे बहुत जल्दी जो है मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है, 2 फिरकों को बांटने की कोशिश की जाती है। हम इनके शुक्रगुजार हैं जिन भाइयों ने हिंदू समाज से आकर के हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। इन्होंने इस बात को साबित किया है कि हम किसी जो है मजहबी रंग के शिकार नहीं होंगे, बल्कि हम मुल्क के साथ रहेंगे। बेशक। ऐसे लोग ही अगर इस तरह से पूरे लोग साथ दें तो इंशाअल्लाह उम्मीद है हमें, हमारा मुल्क जिस तरक्की की तरफ जा रहा था उसी तरक्की पर जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन हजरात मोहतरम, मैं अपनी बात को तफसील न करते हुए मैं आपको इतना और बताना चाहता हूँ कि आप हजरात भी इसको ये ना समझे कि हमने आज प्रोग्राम कर लिया तो हमने बहुत कुछ कर लिया, बल्कि इस बात को, इस जज्बे को लेकर के जाएं। हमारे जिस्म में जब तक जान है, हमारी रगों में जब तक खून दौड़ रहा है, ये उस नबी का ही सदका है। हम जो खाते हैं ये नबी का सदका है, जो पहनते हैं नबी का सदका है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसी नबी का सदका है। ये जिंदगी उनके सदके में है, ये दौलत उनके सदके में है, ये माल औलाद सब उनके सदके में है। इसलिए हम सब कुछ अपने नबी पर कुर्बान करेंगे। और जब तक हम मुतालबा करते रहेंगे नरसिंहानंद को, जब तक के सजा नहीं दी जाती है तब तक के हमारा मुतालबा जारी रहेगा, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। स्टेज के माध्यम से भी, मस्जिद के मिंबर से भी, रोड के किनारे पर भी, हमारी मस्जिदों से भी, हमारे मदारिस से भी, स्कूलों से भी, दुकान से भी, मकान से भी, जब तक हमारे जिस्मों में जान रहेगी तब तक दुश्मने रसूल और गुस्ताखे रसूल के खिलाफ हम मुतालबा और एहतजाज करते रहेंगे इंशाअल्लाह। यही हमारा कहना है। मीडिया के माध्यम से हम लोगों से बताना चाह रहे हैं कि अभी हम ये हमारे जितने हजरात आए हैं, हमारे शहर काजी और हमारे तमाम मकातिब फिक्र के लोग, सारे शहर के लोग, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम की तरफ से हमारा यही मुतालबा है
मीडिया के माध्यम से भी कि हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए, और प्रशासन से भी हमारी यही गुजारिश है कि हमने जो FIR के लिए कहा है, हमारी FIR दर्ज कराई जाए, और दर्ज करने के बाद हमको उसकी कॉपी भी दी जाए। अक्सर ऐसा हो रहा है कि लोग जा जाकर के वहाँ उनके ज्ञापन ले लेते हैं। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, हमारे काजी भी गए, हमारे शहर के जिम्मेदार भी गए, हमारे प्रशासन के जिम्मेदारान ने हमारी एप्लीकेशन को सिर्फ एक बार देखा और उसको नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम में हम एक इन्विटेशन लेटर लेकर के गए तो उसे छुआ तक नहीं। ये सारी शिकायत हम इस स्टेज से इसलिए कर रहे हैं ताकि आइंदा हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, तवज्जो दी जाए। हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम कोई किराएदार नहीं है। हम इस मुल्क में बराबर का हक रखते हैं। हम किसी के बताने से वफादारी को नहीं मानते, बल्कि हम अपनी जान और माल से कुर्बानी देकर के वफादारी करते हैं। इसलिए हज़रात मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे दिलों को बहुत तकलीफ है। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल करे और जल्द से जल्द इस बाबा को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि हज़रात मोहतरम अरे मीडिया के लोग आए, बैठ जाए। आप हज़रात बैठ जाइए, बहुत जल्दी में उड़ान इख्तिताम पसीर होने वाला है। आप लोग बैठ जाइए आप लोग, सब लोग बैठ जाए सब लोग, आप लोग बैठ जाएं। बस थोड़ी देर के लिए आप लोग बैठ जाइए। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तहकीक के तुम में से एक रसूल आया जो कि तुम पर बहुत ही ज्यादा अजीज है और तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हरीस है। मोमिनों पर उसको हर चीज का लालच है कि ताकि वो तुम्हें अल्लाह की रहमतों के करीब कर दे और दुनिया की गंदगी से निकाल करके जन्नत का हकदार बना दे। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर हाल में, हमारे लिए हमारे नबी ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बत के लिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल बनाने के लिए हर मौके पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए दुआएं मांगी है। हम उस नबी का एहसान कैसे भूल सकते हैं जिस नबी ने पैदा होते ही रब्बी हबली उम्मती कहा, जिस नबी ने हमें हर जगह याद रखा, मेराज की रात हमें याद रखा, अपने नबी ने अपनी यादों में, अपनी बातों में इस उम्मत को याद रखा। इस उम्मत का कोई भी फर्द अपने नबी के एहसान को नहीं भूल सकता है। हमारे नबी ने हमेशा हमें याद रखा है तो हम भी अपने नबी को हमेशा याद रखते हैं। खुदा ने हमारे नबी को हमारी हर चीज में शामिल कर दिया है। अजान से लेकर के नमाज तक, नमाज से लेकर के तिलावत तक, हर चीज में हमारा नबी हमारे साथ है। इसलिए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके खिलाफ कोई भी बात सुनना गवारा नहीं करेंगे। कुछ लोग, आज के लोग सेकुलर मिजाज और लिबरल मिजाज लोग जो है इस तरह की गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए, उस तरह से नहीं करना चाहिए। वो इस ऐसे मौकों पर हमें दर्श देने की कोशिश करते हैं। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि वो दोगली पॉलिसी बंद करके हमेशा इंसानियत की बात करने वाले लोगों को चाहिए कि यहाँ भी इंसानियत की बात करें। क्या किसी की बुराई कभी अच्छी हो सकती है? जब किसी की बुराई कभी अच्छी नहीं हो सकती तो पैगंबर इस्लाम की बुराई कैसे अच्छी हो सकती है? ये उनके दिलों में छुपी हुई वो बुराई है जिसे वो दुश्मनी इस्लाम और इस्लाम दुश्मनी में जाहिर करते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों से बिल्कुल बेपरवाह हैं और उनकी हमें कोई परवाह नहीं है। हम उसके साथ हैं जो हमारे साथ, जो हमारी सुनेगा, हमारे साथ देगा, उसके साथ हमेशा के लिए हमारा साथ है। इसलिए हज़रात मोहतरम, मैं आपसे बड़ी मन्नत और समाज के साथ अर्ज करूंगा कि आप हजरात पुरसुकून अंदाज में जैसे आए हैं, पुरसुकून अंदाज में ही यहाँ पर बैठें और अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की बात सुने और इसी पर अमल करें। और जब तक के इसको सजा नहीं हो जाती है, अपनी दुआओं में और अपनी बातों में इस बात को कहते रहें कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पत्रकार बैठ जाओ यार, मेरा भाई तुम लोग यार, भैया आप लोग बैठ जाओ। आखिरी
थोड़ी देर सुन लो बस इंशाल्लाह हम लोग और बोलेंगे तो ठीक है। या तो थोड़ी देर में बुलवा दे हाँ बस पहले 5 मिनट बुलवा दो 5 हाँ आप दे दो। हाँ बोल दीजिए हाँ 2-4 मिनट जो भी बोले बोल दीजिए इधर आ जाइए। पानी दे दो पानी दे दे पानी दे दे। हमारा हिंदुस्तान हमारा चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम वतन है सारा जहां हमारा बेशक बेशक। हम मुसलमान अहले इस्लाम अरे फ्रूटी हटा दो यार, हमें पानी चल जाने दो। अपनी सबसे बड़ी चीज अपनी तारीख को हम भूल गए। अगर हमें अपना माजी याद होता तो आज हमारे अंदर ये गुस्सुली ना होती। हम माजी में क्या थे, अल्लामा इकबाल के अशार से पता चलता है कि ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा वाह सुभान अल्लाह। और बातें से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम। वाह 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 सुभान अल्लाह। आज बात हर मुसलमान हर हिंदुस्तानी यही कहेगा बेशक। कि बातें से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एनआरसी के मौके पर कहा था कि अभी देखो क्या क्या होगा हमारे साथ, समझे। उसके बाद क्या क्या हुआ, आज हम किस पे आ गए हैं। लेकिन हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि जो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं वो हमें आजमाए ना, वो हमारा इम्तिहान न लें, वो अपनी भी तारीख को याद करें और हमारी भी तारीख को पढ़ें। वो हमारे नबी की तारीख तो बहुत बाद में पढ़ें, हमारे नबी के सच्चे जानशीनों की तारीख को बहुत बाद में पढ़ें। पहले वो इस मुल्क की हमारी तारीख पढ़ें कि इस मुल्क को हमने क्या दिया, बेशक। इस मुल्क के लिए हमने क्या कुर्बानियां दी हैं, इस मुल्क में अमन और अमान के लिए, शांति के लिए हमने कैसे कैसे पैगामात दिए हैं, पहले उसको पढ़ें। आज हर तरीके से आप सबसे बड़ी चीज ये देखें कि आज वो आका इस्लाम कुरान या इस्लाम के बारे में बात कर रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, देखिए वो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को खत्म नहीं कर सकता है। बेशक बेशक। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमतों को वो खत्म नहीं कर सकता, कोई नहीं कर वो इस्लाम को खत्म नहीं कर सकता। अरे इस्लाम को तुम चाहते हो कि हम हिंदुस्तान से खत्म कर लें? अरे इस्लाम वो प्यारा मजहब है, वो अनोखा मजहब है जो दुनिया के हर कोने पर है। बेशक सुभान अल्लाह। और हमारे नबी की अजमत, हमारे नबी की रिफत हमारी सिर्फ जबानों की मोहताज नहीं है कि हम नाम लेंगे तभी हमारी नबी की अजमत में 4 चांद लगेंगे। अरे अल्लाह ने पूरी दुनिया में एक अजान के जरिए से ऐसा कानून बना दिया है कि दुनिया में जिस जिस कोने पर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाएगा तो उसी कोने पर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो चाहता है कि मुल्क से हम इस्लाम को खत्म कर दें, मुसलमानों को खत्म कर दें। अरे मुसलमान को खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना वो बैठ के बातें कर रहा है। बातें कर रहे हैं, आओ अगर हिम्मत हो तो इस खुले मैदान में बातें करो, तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमान क्या है, हमारा मुल्क क्या है। मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, ये मुल्क हमारा है, इसी वजह से हम मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क के लिए हमारे नबी ने इस मुल्क को पसंद किया, इस वजह से मोहब्बत करते हैं। तुम्हें आजमाना है तो सरहदों पे भेज के मुसलमानों नारे तकबीर, नारे रिसालत, के नबी की एक सजा,
मोहब्बत में आजमाओ कि मुसलमानों के दिलों में हिंदुस्तान की मोहब्बत है कि नहीं? हिंदुस्तान से वफादारी है कि नहीं? अरे मुसलमान तो ऐसा वफादार है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में दफन होगा। मुसलमानों को आजमाते हो और तुम चाहते हो कि मुसलमानों को ठेस पहुंचा के मुसलमानों ने कब तक आजमाओगे मुसलमानों को? ये वो कौम है जब खामोश रहती है तो रहती है, लेकिन जिस दिन उठती है तो हर बातिल ताकत का जवाब मुंह तोड़ जवाब देना गूंगी बहरीन हुकूमतों से, जो भी गूंगे बहरे बने इस दौर में, अगर हमारे किसी भाई ने अगर किसी मजहब के खिलाफ कोई आवाज उठाई होती, हम आपसे भी कहें कभी किसी मजहब के खिलाफ उंगली न उठाना। हमें किसी से क्या मतलब? अरे हमारा मजहब तो वो मजहब है कि हम जिंदगी भर अपने मजहब की अगर तारीफें करते रहे तो हमारी जिंदगियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन हमारे मजहब की तारीफ कम नहीं पड़ेगी। हम क्यों किसी की बुराई करें, हम क्यों किसी में कमियां निकालें? अरे हमारा नबी वो नबी है कि हम जिंदगी भर अपने नबी की तारीफ करें, हम अल्लाह की जिंदगी भर तारीफ करें, हम इस्लाम की जिंदगी भर तारीफ करें, हम अपने सच्चे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे जानशीनों की तारीफ करें। अरे हमारी सांसें किसी की बुराई करने के लिए नहीं हमारे जिस्मों में है, हमारी रूहें हमारे जिस्मों में किसी पर उंगलियां उठाने के लिए नहीं है, हमारी रूहें जिस्मों में है तो इस वजह से है कि तुम अपने नबी के गुण गाते रहो, अपने नबी का चर्चा करते रहो, अपने नबी के पैगामात को आम करते रहो। बस हमारा तरीका यही होना चाहिए। लेकिन हमें अपने असलाफ की तारीफ भी याद है। हमारे असलाफ ने नबी की अजमत पे उंगली उठाने वालों को का जो काम तमाम किया है हम वो भी जानते हैं। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गालियां दी थी। खालिद ने कसम खाई थी कि जब तक उस शैतान को, उस मरदूद को, उस बादशाह को हम उसका काम तमाम नहीं कर देंगे जब तक खालिद एक बूंद पानी का अपने गले से नहीं उतारेगा। वो थे मर्दे मुजाहिद, हम भी उनके सच्चे गुलाम हैं, हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं। वही हुआ कि टाइम नहीं लगाता हजरत खालिद इब्ने वलीद ने उस बादशाह, उस मलून का तन से सर जुदा करके और काफिरों के सामने फेंक के कहा था, नबी के गुस्ताख की बस एक सजा, गुस्ताख के नबी की एक सजा, नबी की एक सजा, गुस्ताख के नबी की एक सजा। हम अमन चाहते हैं, हमारे नबी, हम वही चाहते हैं जो हमारे नबी ने हमें बताया। आप कुछ थोड़ी बहुत आयतें पढ़ के हदीसों की बात करते हैं, उन्हें क्या शऊर मालूम? समझे, हदीसें पढ़ना कोई आसान थोड़ा नहीं, हदीसें पढ़ना बड़े बड़े आलिमों का काम है, हदीसों को समझना बड़े बड़े आलिमों का काम है। आज लोग कुरान पे, हदीसों पे, नबी पे उंगलियां उठाते हैं। अरे वो अपने आप को देखें कि हम क्या है, हम वही काम कर रहे हैं कि हम आसमान की तरफ थूक रहे हैं, वो थूक हमारे ऊपर गिरेगा, कहीं और नहीं गिरेगा। लेकिन हम अहले कन्नौज से आप सबसे गुजारिश करते हैं, आज आप जैसे अपने नबी के नाम पर एक हुए, आप तहैया कर लीजिए कि जब तक हमारे जिस्म में सांसें हैं हम इस्लाम के नाम पर, नबी के नाम पर मुत्तहिद बने रहेंगे इंशाअल्लाह। आप अगर मुत्तहिद बने रहेंगे तो कोई आप बातिल ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और उन बातिल ताकतों से भी हम कहना चाहते हैं कि हम किसी को छेड़ना नहीं चाहते, और लेकिन नबी के नाम पर किसी को छोड़ना भी नहीं चाहते। तो हमारे नबी से, हमारे मजहब से, हमारे इस्लाम से, हमारे कुरान से, हमारे खुदा से कोई खिलवाड़ न करे, कोई खेलने की कोशिश न करे। हम मांग कर रहे हैं, और सिर्फ मांग हम सलाखों की नहीं कर रहे हैं, हम उस मरदूद शैतान की बोटी बोटी होते हुए देखना चाहते हैं। और जिस मजहब के खिलाफ कोई उंगली उठाए, आप एक सजा मुतय्यन कर दीजिए, कानून बना दीजिए। आप तरह तरह के कानून बना रहे हैं, तरह तरह के कानून पास कर रहे हैं। मास्क का कानून पास किया, अमित शाह का कोई बता दे आज तक मास्क लगाया उसने, जितनी सभाएं हुई कोई बता दे। तो कानून का गरीबों के लिए है, कानून के आवाम के लिए है, कानून तुम्हारे बादशाहों के लिए नहीं है। तुम अगर सल्तनतों के हुक्मरान हो तो तुम्हारे कानून क्या उनके लिए नहीं है? कानून अगर एक
मालदार के लिए जैसा है, एक बादशाह के लिए जैसा है, वैसे ये गरीब के लिए होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून अगर आप पार्लियामेंट में आज मुसलमानों के लिए कानून बना सकते हैं, किसानों के लिए कानून बना सकते हैं, तो क्यों ना सबसे बड़ा कानून वो होगा जो मजहब के नाम पे बनेगा कि किसी मजहब के नाम पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसे सजाए मौत दी जाए। की एक सजा, की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा। हमारे परसों बैठे मीटिंग हो रही थी, हमने कहा भी हमारे अहम लोग शहर के बैठे हैं, ये सब कोई पार्टी की बिना पे नहीं आए हैं, इस्लाम जो भी बैठे हैं ये हम जानते हैं। अब इंसान की आदत है कुछ ना कुछ बातें उससे निकल जाती हैं पार्टी के ताल्लुक से, लेकिन ये हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम पर एक हुए और इंशाअल्लाह ये एक बने रहेंगे इंशाअल्लाह। जब नबी की बात आएगी तो न कोई सपा को देखेगा, न बसपा को देखेगा, न कांग्रेस को देखेगा, न बीजेपी को देखेगा, किसी पार्टी को नहीं देखेगा, बल्कि एक पार्टी को देखेगा, वो हमारी पार्टी मदीने की पार्टी। तो ये सब हमने कहा इन लोगों से क्या वक्त आ गया है हर एक मजबूर का साथ देने का, हर एक मजलूम को छुड़ाने का। और इन लोगों ने वादा भी किया है कि इंशाअल्लाह अहले कन्नौज और उसके अलावा जो भी हमारे लोग हैं, हम अपने भाइयों का हर मामले में इंशाअल्लाह, दीन के मामले में हमारी और हमारे जो हमारे लोग हैं, हमारे रुफ़क़ा हैं, उलमा हज़रात हैं, जब भी अहले कन्नौज को कोई भी कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह हम और हमारे रुफ़क़ा आपके कांधे से कांधा मिला के इंशाअल्लाह। लेकिन आप कभी अपने जाती मामले में कभी एक दूसरे से झगड़ना ना। गुस्सा हराम है, हर मामले में हराम है, लेकिन जब हमारे नबी की बात आएगी तो गुस्सा सवाब है। बेशक, सुभान अल्लाह। हम गुस्सा करेंगे और इंशाअल्लाह हमारा गुस्सा दिखेगा। ये आज की एक महफिल ये इब्तिदा है, ये हमारे नबी की बात है। हम नबी के मामले में कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं और इंशाअल्लाह ये भी बहुत कम लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ये मुश्किल से 8-10 घंटे का प्लान है और वो भी एक छोटी सी पोस्ट के जरिए जितनों की खबर हुई वो हो गई। लेकिन अगर कोई कार्रवाई न हुई, हमारे शासन प्रशासन LIO वाले हमारे खुर्शीद भाई भी यही मौजूद है, हम सबसे कहना चाहते हैं इसमें सब पता नहीं क्या हो गया, हमारे लोगों को सब पता नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई कानों में ऐसा तेल डाल लिया हो कि किसी को कोई खबर ही नहीं। हमारे बहुत से भाई भी इलेक्शन में बिजी हैं, उन्हें भी कोई पता नहीं आखिर हुआ क्या है। कन्नौज में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के सीने चल रहे हैं, मुसलमानों के दिल जल रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों पे जब हमला हुआ था, मुसलमानों की औलादों पे जब हमला हुआ तो मुसलमान खामोश था। आपने 370 बनाया, मुसलमान खामोश था। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, मुसलमान खामोश था। NRC वगैरह के आपने कानून बनाए, मुसलमान खामोश था। लेकिन अब उस नबी की बात आई है जिस नबी के सदके में इस मुसलमान को जिंदगी मिली है, जिस नबी के सदके में इस मुसलमान को साथी मिली है, जिस नबी के सदके में ये मुल्क बना है और जिस नबी के जानशीनों के सदके में इस मुल्क में अमन कायम है, अब उसकी बारी आई है तो खामोश नहीं। बस आपसे कहना चाहते हैं, सब आपके साथ हैं। आप अपने दुख दर्द लेकर जो जैसी इस्तिताअत रखता है, वो हमारे नेता हो, हमारे शहर के अवाम हो, खास लोग, यही नहीं सिर्फ ये खास बैठे बल्कि कुछ खड़े भी हैं, साइडों में भी हैं, सब अहम लोग हैं हमारे। लेकिन हर मजलूम के दुख दर्द दूर करने के लिए हमारे इन भाइयों पर उनका फर्ज है कि उनके ये दुख दर्द को दूर करें। और सबसे अलग हटके हर हिंदुस्तानी बाशिंदे के दुख दर्द हो, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, हर एक को। और हम बार बार कहते रहेंगे और ये करेंगे इंशाअल्लाह, हम करवाएंगे इनसे इंशाअल्लाह, समझे? और हम भी करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के मामले में, मजहब के मामले में, अमन के मामले में इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जब नबी की बात आएगी तो गर्दनें आपकी नहीं कटेंगी इंशाअल्लाह। हमें इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इन दीवानों को, क्योंकि हमारे रगों में हुजूर बहरुल इरफान ने ऐसे नबी की मोहब्बत के जाम पिलाए हैं।
इस्लाम से पीछे नहीं होंगे। इंशाअल्लाह वक्त आएगा नबी के लिए तो इंशाअल्लाह सबसे पहले अपनी गर्दन करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारा नबी हमारे लिए सब कुछ है, हमारा ईमान हमारा नबी है, हमारा सब कुछ मेरा नबी है। दुनिया की कितनी जिंदगी है, आप दुनिया में कितने दिन अच्छे गुजार लेंगे, लेकिन जब आपकी रूह जिस्मों से निकलेगी तब आपको पता चलेगा कि अब हमारा बाप काम नहीं आ सकता है, अब हमारी औलाद काम नहीं आ सकती है, अब दुनिया का कोई नेता कोई मंत्री काम नहीं आ सकता है, अब काम आने वाली जात कोई और नहीं है बल्कि काम आने वाली जात मदीने का ताजदार है। कब्र में अज़ाबे कब्र से छुड़ाने के लिए हमारा नबी हमारी कब्र में होगा, मैदान महशर की गर्मी से बचाने के लिए हमारा नबी हमारे साथ होगा, और जन्नत में ले जाने के लिए हमारा नबी हमारे साथ। आप अपने नबी की कुर्बानियों को याद करें कि आपके लिए आप तक इस्लाम पहुंचाने के लिए नबी ने उनके सहाबा ने कैसी कैसी कुर्बानियां की। आप ये 1-2 घंटे की धूप झेल रहे हैं। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पे लिटा के घसीटा जा रहा था, पत्थर रखे हुए थे पेट पर और गरम गरम रेत पे हजरत बिलाल को घसीटा जा रहा था, लेकिन बिलाल की जबान पर एक ही सदा थी, अहद अहद की सदाएं आ रही थी, अल्लाह एक है अल्लाह एक है। ऐसा जान नबी ने पिलाया था, अपने दीदार का ऐसा शौकीन बनाया था गुलामों को कि वो हर जुल्म सहने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने दिल से अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत निकालने के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी बात जंग बदर के मौके पर, आज कहते हैं लोग कुरान में जिहाद का हुक्म है। एक साहब हमें भी हम बिहार जा रहे थे, ट्रेन में कोई अधिकारी थे, हमारा भी एसी में टिकट था, मिल गया साथ में, वो भी यही बातें हमसे बहुत 1 साल पुरानी बात है करने लगे। पहले कुरान में ऐसी बातें आई, हमने की आपने कुरान की वो बातों को तो पढ़ लिया, लेकिन उन मौकों को तो पढ़े जिन मौकों पर ये आयतें नाजिल हुई। किस वजह से हुई? अरे हमारे नबी को जितना सताया गया है पूरी इस मिल्लत को पूरी कौम को भी उतना नहीं सताया जाएगा। हमारे नबी ने पत्थर खाए अपने जिस्म पर तुम तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, तुम्हारे वजह से कुर्बानियां हमारे नबी ने दी, और तुम कहते हो कि हम कुरान में ऐसी ऐसी आते हैं। अरे आप सोचो कितना सताया गया होगा कि हमारे नबी और सहाबा ने अपना वतन छोड़ दिया मक्का, समझे, अपनी बीवियां छोड़ दी, अपनी जमीनें छोड़ दी, अपनी दुकानें छोड़ दी, मक्के से हिजरत कर गए अमन के लिए कि हमारे इस मुल्क में कोई अमन कायम रहे, कोई शर न फैले, कोई फसाद न हो। लेकिन तब भी बातिल ताकतें खामोश से नहीं बैठी और मदीने पाक पहुंचकर नबी को सताने की कोशिश करने लगे। तब मेरे नबी ने तलवार उठाई। जंगे बदर का मौका है, आपके लिए नबी ने कैसी दुआएं की। आखिरी बात हमारी सुनिए। फ्री में लगे हुए 313 मुसलमान, रात की तन्हाई है, कोई नहीं, सब सो रहे हैं, सन्नाटे का आलम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम टीमे के अंदर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। किसके लिए दुआएं मांग रहे हैं? आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपकी फतह कामरानी के लिए दुआएं मांग रहे हैं, आपकी इज्जतों की हिफाजत के लिए दुआएं मांग रहे हैं। रात तारीख है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मौला की बारगाह में रो रो के दुआएं, आप इतना रोए कि आपकी दाढ़ी तर हो गई और आप कह रहे थे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस रूए जमीन पर तेरे नाम लेवा ये 313 है। अगर आज इन्हें खत्म कर दिया गया, आज इन्हें मिटा दिया गया, तो इस रूए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए, आपने हाथ पकड़ लिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, बस कीजिए, अल्लाह आपका मददगार है। और वो सुबह हुई, अब जंग बद्र सबने पढ़ी होगी, सुना होगा, देखा होगा कि उस जंग का नक्शा मेरे नबी के सदक़े में कैसा। मेरे नबी ने कुर्बानियां दी हैं आप तक दीन पहुंचाने, ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी हैं कि आप हजारों जाने अगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बान कर दे तब भी आप हक अदा नहीं कर सकते। तो वो मैदान महशर में गुजरते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लिवाउल हम्द हमारे हाथ में होगा, हम्द का झंडा हमारे हाथ में होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक अगर किसी के जबान पर होगा कि आज मैदान महशर की गर्मी से, आज मैदान महशर में अगर कोई बचा सकता है तो वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला बचा सकता है। तो नबी पर अगर हमारी हजारों जानें कुर्बान हो जाएं तो वो भी कम है। आप लोग तहैया कर लीजिए कि जिएंगे उनकी खातिर और मरेंगे नाम पर उनके, जिएंगे उनकी खातिर और मरेंगे नाम पर उनके, जहां में हर जगह अजमत की उनके गीत बेशक। इंशाअल्लाह आप मुत्तहिद बने रहिए, हम आपके साथ हैं।
اور انشاءاللہ اس جسم میں جب تک روح ہے، میرے والد بزرگوار نے بھی اس قوم کے لیے طرف سے آخر ان کے الفاظ سے انہوں نے کہا تھا، مجھے 2-3 چیزوں کی بہت فکر ہے. سب سے پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اپنی قوم کی سب سے زیادہ فکر ہے. تو انشاءاللہ ان کے یہ غلام بھی اس قوم کے ساتھ بنے رہیں گے، انشاءاللہ کاندھے سے کاندھا ملا کے چلتے رہیں گے. لیکن آج سے کہتا ہوں، اسلام کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں باپ کو باپ نہ سمجھنا، بیٹے کو بیٹا نہ سمجھنا، حکومت کو حکومت نہ سمجھنا. ہر ایک اپنے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے 24 گھنٹے 365 دن تیار رہنا. بس آپ شانتی کے ساتھ جیسے آئے ہیں ویسے ہی اپنے گھروں پر جائیں گے. اور انشاءاللہ اگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر اختلاف بنے گا. اور انشاءاللہ یہ میدان یا بورڈنگ میدان انشاءاللہ ہم ایک دن بھر کے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. بیٹھ جائیں ہم لوگ، بیٹھ جائیے. 2 منٹ کے لیے 2 منٹ 2 منٹ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. بیٹھے آپ تو 2 منٹ کے لیے بس صرف بیٹھ جائیں. ابھی جاپن دے دیا جائے، اس کے بعد میں آپ لوگ چلے جائیں. آپ لوگ بیٹھ جائیں. بہت مشکل ہوتا ہے. اس کی وہ لے لو اور اس کی لیڈ دے لو. بیٹھا دے سب لوگ، بیٹھ جاؤ بھیا، بیٹھ جاؤ. آپ لوگ دھکا نہ دو بھیا. ہندی والا یہ والا لے لو. ارے مولانا صاحب تھوڑا مائک پہ بولنے ہیں. جاپن میں دینا ہے نا بھائی. 1 منٹ آپ لوگ جو ہے ابھی رک جائیں ابھی، اور یہ اسٹیکر ذرا برقرار رکھیں. ابھی جاپن دینے کے لیے ادھیکاری آ رہے ہیں اور یہ پیچھے لگا. اور اپنی جو ہے میڈیا جو بات ہمیں کہنے کے لیے آپ لوگ خاموش ہو جائیں. میڈیا والے اپنا پوچھنا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر رک جائیں. یہاں پہ لگا آگے دے دو بھیا، آگے ادھر لگا لیں. کس طریقے کا آج پردرشن کیا گیا؟ خاموش ہو جاؤ. حضور علیہ الصلوۃ، ہم اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے، کچھ الفاظ استعمال کیے. اس کے توہین کرنے سے کوئی ہمارے نبی کی شان نہیں گھٹ جائے گی. اللہ نے جسے بڑھایا اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے. لیکن اس ملک کا وہ امن خراب کرنا چاہتا ہے، چین خراب کرنا چاہتا ہے، ہر اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا وہ سکون چھیننا چاہتا ہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. اور ہم لوگوں کی مانگ ہے، سب سے پہلی مانگ تو ہمارے سرکار سے ہے کہ وہ مذہب، کسی کا بھی مذہب ہو، اس پر ایک قانون لائے کہ اس پر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اسے سزائے موت ہوگی. اور دوسری چیز، ہم شاسن اور پرشاسن سب سے مانگ کر رہے ہیں کہ ابھی تک 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اس بابا کے تعلق سے کوئی ابھی کارروائی نہیں ہوئی. اتنی FIRیں ہو چکی ہیں. اس سے پہلے بھی وسیم رضوی کے خلاف FIRیں ہوئی، اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. سرکار اور شاسن اور پرشاسن یہ سمجھ رہا ہے کہ کام بہت اچھا کر رہا ہے، لیکن وہ ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے. اگر ملک میں امن چاہتے ہیں، ملک میں شانتی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ملک میں انصاف چاہتے ہیں، تو وہ اس بابا پہ کارروائی کرے. اور اس بابا کے جتنے چمچے ہیں، وہ بابا اکیلا نہیں ہے، اس کے اور بھی چمچے ہیں، انہیں بھی گرفتار کر کے اور انہیں بھی سزا دی جائے. سر جی، اگر آج آپ لوگوں نے دھرنا پردرشن دیا، آپ کرے مقدمے بھی درج ہوئے، اگر اگلی رننیتی کیا ہوگی؟ جب تک اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور اسے سزا نہیں دی جائے گی، مسلمان سکون سے نہیں بیٹھے گا. بے شک.
भाई यही बुला लो इंस्पेक्टर साहब को। भैया सामने हट जाओ तुम लोग, हटो सामने हटो, थोड़ी जगह भैया दे दें आप लोग। यही खड़े रहो। पुतला अभी एक मिनट उसको मोबिन भाई अभी पुतला भी भूखा जाए। तुम लोग हट जाओ जरा, शमशाद भाई बुलाना जरा। ज्ञापन लाओ, ज्ञापन। शमशाद भाई अधिकारी कौन से आ रहे हैं? बुला रहे हैं। जाओ भैया, ये आ गया। बाजी बोल रहे हैं। थोड़ा खामोश है। आप बाद में बात करते यही ऊपर अरे पीछे लगे हैं, अरे पीछे वाले होंगे जो जेब में है, ये टेपिंग है कुछ। बाकी और चीजें लाओ साइन भी कर दे। कोई है कुछ कुर्सी एक आधी हटा बाइक से बोलो। इंस्पेक्टर साहब बुलाने के लिए अच्छा में बैठ के जाएगा। वसीम भाई बुलाने के जी क्या हो वहाँ साहब को दे दो, वहाँ करा लो। जी एक मिनट कुर्सी हटा दो। एक आधी कुर्सी हटा दो। इधर आ जाओ, इधर ज्ञापन क्या वहाँ देने चाहिए? नहीं, यही दिया जाएगा। खुर्शीद भाई लाओ हमसे भी साइन करा लो। पब्लिक चली गई भैया। आप जाने के लोग बहुत जमा है, सब इधर आ जाइए, वहाँ पर भीड़ मत लगाइए। यहाँ पर अभी ज्ञापन दिया जाएगा, प्रोग्राम तभी प्रोग्राम बजीर होगा। आप इधर आ जाए। बोला था